Hello children. Now today I am taking remaining example from 8.1. I think that 8, 9 and 11 and 12 examples means 4 examples are there, but in each example I think that there are sub questions. Therefore I am trying to solve here. Okay, after this chapter will be finished. Example number 8, a person buys a lottery ticket in a 50 lotteries, in each of which his chance of winning a prize is 1 upon 100. Find the probability that he will win a prize. Here n is equal to given as a 50. Solution for that, generally how to write, look here. Here n is equal to 50. कितने लॉटरी टिकट है? 50. In each of which his chance of winning a prize is 1 upon 100. हर एक चांस में, हर एक किसी में लॉटरी टिकट में उसको विन होने का चांस मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज इज 1 upon 100. मीन्स P is given there. P, it is a probability of winning a prize is 1 upon 100, right? Then P is known, means Q is means it is a success, probability of a success, right? Q is equal to 1 minus P, which is equal to 1 minus 1 upon 100 and which is equal to 99 upon 100, right? Then what is X here? Now find the probability that he will win a prize. First is at least once. X का वैल्यू at least once means X से कम एक मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा वो 50 टाइम्स भी तो विन हो सकता है, राइट? तो हियर x इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ बाइनोमियल x follows, so here we have to write x, it is the random experiment. Okay, x is the random experiment, that is a number of times we wins a prize. तो ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है. तो यहाँ फर्स्ट इसमें एटलीस्ट वंस, राइट? तो x की वैल्यू हम कितना लेना है? हियर x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n and p. Therefore x follows binomial parameters. n is a 50, p is a 99 upon 1 upon 100, not a 99, 1 upon 100. Therefore p of x is equal to x. ये लिखना ही है, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है. which is equal to ncx p raised to x q raised to here n minus x. It is the write down as the equation number 1. अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एटलीस्ट वंस मीन्स एटलीस्ट वंस, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? एक से ज्यादा भी हो सकता है. therefore you have to write p of x, it is greater than or equal to 1. एटलीस्ट बोला है ना, वंस कम से कम एक मीन्स एक या तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है. therefore it is p of x greater than or equal to 1. इस केस में हम क्या कर सकते हैं? देखो एक से ज़्यादा मीन्स 50 तक अगर ये फॉर्मूले में हम वैल्यू डालेंगे x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 अप टू 50, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा. इन दिस केस वी हैव टू सॉल्व 1 minus 1. it is the probability of a success एंड फेल्यूर आल्सो, मीन्स दोनों का कंबाइन होता है. 50-50 चांसेस रहते हैं. therefore 1 we have to take because p plus q is equal to 1.
P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, इसीलिए P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो यहाँ 1 माइनस P ऑफ, देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो 1 के इसी में हम लिखते हैं, तभी क्या होता है, ये ग्रेटर देन है तो उसी का अपोजिट साइन लेना है, इक्वलिटी साइन है तो वो हटाना है। तो P ऑफ x लेस देन क्या आ जाएगा 1। अभी लेस देन 1 मीन्स क्या आ जाएगा 1 माइनस P ऑफ x इज इक्वल टू, हियर ये x विच इज इक्वल टू x लेस देन 1 मीन्स क्या आ जाएगा 0। 1 x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दो, देन यू विल गेट द P ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, तो अभी यहाँ हम वैल्यू फिलअप कर देंगे विच इज इक्वल टू therefore P of x, sorry it is a capital X greater than or equal to 1 which is equal to 1 minus, अभी यहाँ P of x which is equal to 0, तो ये जो फॉर्मूला था इक्वेशन नंबर 1 में x का वैल्यू 0 पुट ऑन करना है, n p q के वैल्यू पुट ऑन करना है। तो n इज 50, c x इज 0, p इज what is the value of p, 1 upon 100 raised to x, that is a 0, into q 99 upon 100 raised to n minus 0, n is a 50 minus 0, then which is equal to 1 minus 50 c 0, that is a 1 into something raised to 0, that is a 1 into 99 upon 100 raised to 50 minus 0, 50, means value is 1 minus 99 upon 100 raised to 50। आप इसी को कैलकुलेट करो या ना करो, एज इट इज यू हैव टू कीप दैट, ऐसे भी रख सकते हो। देन सेकंड क्या है, एग्जैक्टली वंस, मीन्स हियर x इज इक्वल टू डायरेक्टली पुट द वैल्यू एज अ 1, तो सेकंड के लिए लिखेंगे एग्जैक्टली वंस। ओके, therefore x is equal to 1, तो यहाँ P of x डायरेक्टली यू हैव टू राइट हियर, ये x की वैल्यू 1 विच इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा NCx, देखो ये फॉर्मूला P रेज टू x Q रेज टू n माइनस x, तो n का वैल्यू 50, C x इज 1, P इज 1 अपॉन 100 रेज टू x, दैट इज 1, Q इज 99 अपॉन 100 रेज टू 50 minus 1 which is equal to 50c1, that is a 50 into 1 upon 100, sorry, into ये 99 upon 100 raised to 49। ओके, ये 15 टू आ जाएगा, ये एज इट इज रख दो, मीन्स योर आंसर शुड बी, सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 99 अपॉन 100 रेस टू 49, ऐसा ही रख दो एज इट इज योर आंसर फॉर सेकंड। अभी थर्ड में क्या है, एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2, अभी कम से कम 2 मीन्स क्या है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 या तो 2 से ज़्यादा। ओके, सेम फर्स्ट के जैसा ही है। थर्ड का आंसर, थर्ड इज एटलीस्ट ट्वाइस, therefore P of x it is ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू, यहाँ भी उसी तरह से करोगे, 1 माइनस करके करोगे, 1 माइनस P of x it is लेस देन 2 विच इज इक्वल टू 1 एज इट इज माइनस, अभी लेस देन 2 मीन्स क्या आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा और 1 भी आ जाएगा, तो P ऑफ 0 प्लस ये ब्रैकेट में लिख दो P ऑफ 1। अभी ये हमने दोनों फाइंड आउट किया है, 0 भी और 1 भी फाइंड आउट किया है, तो वो डायरेक्टली वैल्यू पुट ऑन करोगे, 1 माइनस, देख लो ये यहाँ, और फॉर्मूले में अगर हम डायरेक्टली वैल्यू पुट ऑन करते हैं तो किस तरह से आता है, या तो हमने ये फाइंड आउट किया है, P ऑफ 0 फाइंड आउट किया है, देख लो थोड़ा सा फर्स्ट सेकंड में, तो
नहीं आता है तो फॉर्मूले से फिर से पुट ऑन करोगे. n is a 50, c 0. Here p is a 1 upon 100 raised to 0 into q is a 99 upon 100 raised to 50 minus 0. ओके. ये प्लस यहाँ जहाँ भी 0 लिखा है वहाँ 1 डाल दो सिर्फ. 50 c1 1 upon 100 raised to 1 into 99 upon 100 raised to, directly I am writing 50 minus 1, that is a 49, which is equal to 1 minus, ये 1 आ जाएगा यहाँ 1, here 99 upon 100 raised to 50 plus 57 is a 50 into 1 upon 100 into 99 upon 100 raised to 49, which is equal to 1 minus. अभी देखो ये 99 upon 100 raised to 50 प्लस ये 5 to ज़ा 1 upon 2 into 99 upon 100 raised to 49. अभी हम कॉमन ले सकते हैं इसी में. ये स्मॉल जो है वो कॉमन लेंगे और सॉल्व करेंगे, या तो एज इट इज रखेंगे तो भी चलेगा, बट बेटर देन यू हैव टू सॉल्व दैट, विच इज इक्वल टू 1 माइनस. अभी मैं यहाँ से 99 अपॉन 100 रेस टू 49 आई एम टेकिंग एज अ कॉमन. यहाँ से कॉमन लिया ये दोनों में से, प्लस है यहाँ से. ओके, तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, तो ये किस तरह से आ जाता है. तो देखो ये 99 अपॉन 100 एज इट इज रहेगा. इसी में से एक कॉमन लिया है, 50 है तो 49 लिए, मीन्स 99 अपॉन 100 एक रहेगा, प्लस ये 1 अपॉन 2. अभी आप इसी को सॉल्व कर दो या क्या करते हैं देखिए. विच इज इक्वल टू 1 माइनस 99 अपॉन 100 रेस टू 49 इंटू 100 एलसीएम आ जाएगा. ये 99 प्लस 50, यहाँ 100 करना है तो 50 से मल्टीप्लाई करोगे, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 99 अपॉन 100 रेस टू 49 इंटू 99 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 149 अपॉन 100. इट इज योर आंसर. ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड. नाउ एग्जाम्पल नंबर 9. एग्जाम्पल नंबर 9. In a box of floppy disks, it is known that %95 will work. A sample of 3 of the discs, a sample of 3 of the discs is selected at random. Find the probability that first question none, second question 1, third question 2, and fourth question
all three of the sample will work. All three of the sample will work. Solution for that. Now look here. अभी ये फ्लॉपी जो होता है, पहले कंप्यूटर जब मीन्स 2005 के नियर अबाउट जब भी आता था उसी में फ्लॉपी डिस्क होते थे, राइट, मेमोरी के लिए जो हम कॉपी कर सकते थे इसी तरह से. उसके बाद में सीडी आ गई, फिर उसके बाद में सीडी के बाद में क्या आ गया, डीवीडी आ गई. डीवीडी के बाद में अभी हमारा पेन ड्राइव आ गया. अभी उसके बाद में अभी छोटे छोटे माइक्रोस ये आ रहे हैं, चिप्स आ रहे हैं. ओके, तो ये मेमोरी सेव करने के लिए होता है. तो यहाँ in a box of a floppy disks it is known that 95% will work. तो ये क्या दिया है, 95% वर्क मीन्स इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग ऑफ फ्लॉपी डिस्क, राइट. मीन्स P is equal to 95%, that is 95 upon 100. डायरेक्टली क्यों फाइंड आउट करोगे. हियर a sample of 3 of the disks n is given, that is a 3 is selected at random. ये 3 randomly select किए. Find the probability that first is a none, दूसरा 1, third one 2 and fourth one is a all 3 of the sample will work. तो अभी हमको 1 by 1 सॉल्व करना है. Here solution n is equal to number of disks selected which is equal to 3. Then x which is equal to x क्या दिया है, number of floppy disks runs. Then P is the probability of getting floppy disks अभी यार रन लिख सकते हैं या तो वर्क लिख सकते हो. disks run and it is given as a 95% which is equal to 95 upon 100 means simplest form लिख दो 19 upon 20, 5 से डिवाइड होता है. therefore q is equal to 1 minus p and which is equal to 1 minus 19 upon 20 which is equal to it is a 1 upon 20 आ जाएगा. it is a 1 upon 20. Therefore, x follows binomial distributions with parameter np. तो n is a 3 and p is a 19 upon 20. ये लिखना ही है. First is a none work, कोई भी वर्क नहीं कर रहा है. none work मीन्स वैल्यू ऑफ x, मैं अभी यहाँ थोड़ा सा ये लिख देती हूँ, p ऑफ x विच इज इक्वल टू x. ये यहाँ फॉर्मूला लिखना नेसेसरी है. एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स. तो यहाँ नन वर्क मीन्स यू हैव टू राइट p ऑफ x इज इक्वल टू x की वैल्यू कितना 0. देयरफॉर p ऑफ x is equal to 0 which is equal to n is a 3. c x का वैल्यू 0, p is a p का वैल्यू कितना है 19 upon 20, x is a 0. here q is a q का वैल्यू कितना है 1 upon 20, n minus x, n is a 3, 3 minus 0 that is a 3, 3 c 0 that is a 1. यहाँ 19 upon 20 raised to 0 1 into
1/20 raised to 3 मीन्स योर आंसर इज 1/20 raised to 3, ये आ जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट का आंसर। उसी तरह से सेकंड, यहाँ x का वैल्यू 1 पुट ऑन करोगे तो देखो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रही है, ये सेकंड के लिए, फर्स्ट को ही मैंने सेकंड कर दिया। यहाँ क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, p ऑफ x इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला यही फॉर्मूला, इसी में x की वैल्यू सिर्फ 1 पुट ऑन करोगे, n इज 3, c हियर 1, p इज 19/20 raised to x that is 1, q is 1/20 raised to 3 minus 1 which is equal to nc1 that is n, तो 3c1 that is 3, यहाँ 19/20 here 1/20 raised to 2। ओके, तो आप इसी को इस तरह से भी लिख सकते हो, 19 into 3 इट इज 57 into 1/20 raised to 3 लिख सकते हो। इट इज योर आंसर सेकंड का। अब यहाँ सेम थर्ड का 2 है, तो यहाँ मैं थर्ड लिखेगी x की जगह 2, p ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ ये 3 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ c की जगह 2 आ जाएगा। ओके, जहाँ भी x है वहाँ 2 लिख दो, हियर इज 2, हियर ऑल्सो 2, तो देखो 3c2 19/20 स्क्वायर इंटू 1/20 रेज टू 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू, ये एनसीआर फाइंड आउट कर दो। एनसीआर हाउ टू फाइंड, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो देखो n फैक्टोरियल मीन्स 3 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, तो r इज 2 राइट, यहाँ फॉर्मूले में हमारा x है राइट, तो x की वैल्यू 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल तक लिखना है, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन ये 2 फैक्टोरियल n माइनस r, n 3, r इज 2, 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, तो ये 1 फैक्टोरियल दैट इज 1 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 19/20 स्क्वायर ऑफ दैट इंटू 1/20 रेज टू 1 विच इज इक्वल टू, ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 इंटू यहाँ ये 20 में इधर मर्ज करेगी, ये 19 स्क्वायर इंटू 1/20 यहाँ क्यूब लिख सकते हैं। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा, इट इज द आंसर ऑफ थर्ड। अभी फोर्थ का क्या है, ऑल 3 ऑफ द सैंपल विल वर्क, x की जगह 3 लिखना है बस, ये फोर्थ का आंसर। x की जगह क्या लिखना है, x इज इक्वल टू 3, सेम फॉर्मूला इज द सेम। नाउ लुक हियर, फोर्थ का NCX, यहाँ n is 3, c x is 3, p is 19/20 raised to x that is 3, q is q की वैल्यू क्या है 1/20, यहाँ n is 3 minus 3, 3c3 that is NCN is equal to 1, NC0 is equal to NCN is equal to 1, तो ये 1 आ जाएगा, 19/20 रेज टू 3, और ये 3 minus 3 0, something raised to 0 that is 1, means your answer is 19/20 ब्रैकेट 2, ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये 9th एग्जाम्पल completed. Students, I think that I took example number 10 in a previous video there. Then I am starting here example number 11. Only 2 examples remain there.
example number 11. Okay.